Hello everyone, welcome to Mind Matrix Learning. So my name is Anshu. I'm an educator at Mind Matrix Learning, and we have Sachin sir, who is also an educator here. Apart from that, we have one of our student, and he has secured All India rank 16 in GATE D exam this year, and that's a very big achievement. So very warm welcome to you, Harry, and heartiest congratulations from our side. Thank you, sir. Yes, Sachin sir. So yeah, congratulations from my side as well, Harry. So I hope you are already enjoying this time with your family. I guess I can hear the crowd, like that noise in the background that shows some kind of happiness, people around you. So it's amazing. I know like that kind of a feeling. It's great, really. So yeah, so this is going to be about you, your journey. How was it, and how you actually reached up to this point of securing such an amazing rank. Okay, so this whole interview would be around that thing. Okay, I hope shall we Okay, get sir. started? Okay, sir. I think Yeah, there's some background noise coming, Harry. Harry, if you can just help us out in reducing that noise if it's possible, or that's not really a major issue, but still if it's possible, Yeah, because we can it would be understand. good for the Okay, listeners also. okay, sir. ठीक है सर. Okay, क्या बात है great. बहुत बढ़िया. So, हाँ, yeah, sir, Harry. So, started yeah, so Harry, you can tell us about yourself and the listeners also, to the listeners also. about yourself. Yeah. Yeah. My name is Harry Saraswat, and I have done my graduation from Jabalpur Engineering College. I have graduated last year. I have done BTech in Information Technology, Okay. and this year I have give the GATE D exam and got AIS 16. Such a That's simple answer, really guys. Okay, so like I did my bachelor's and I got the rank. Done. yeah. So, but there lies a lot of struggle. There lies a lot of what should I say, ups and downs. It's a big whole journey which every aspirant has to go through to reach such a point. But it's the humbleness Exactly. with which he is telling right now that okay, we started and this is the end point we are having, and Yeah. the every detail of that we'll be getting to know in this Yeah. interview now. And getting such a rank, All India rank 16, is no joke, and it is testament to his efforts that he has, put throughout the preparation. So we will be talking about that in a lot of detail. And so yes, Harry, first of all, how are you feeling? And what were the reactions of your family after they got to know that आपका rank All India 16 आ रहा है गेट डी एग्जाम में और आया है just Sir, I am very happy, sir. Feeling very good that this year I can go to ISC. okay, It was my that's Okay, dream. okay, I okay. started GATE preparation for only ISC. oh Oh man. But Yes, sir. I would still like to, tell you something about ISA. It's not, you need to be just aware that the current placement season is not going good. Just keep that in mind. Yeah, mhm. Yes, rest sir. thing is, yeah, that's fine. So, okay, great. And that your smile actually shows your reaction as you mentioned that, okay, I'm feeling good. A beautiful Yes, sir. smile you're having. Okay, so now we'll start upon the journey. So let's boot the bus, guys. Every aspirant, whosoever is watching. So actually, as he mentioned that you belong to IT background, Yes, BTech sir. in IT. Uh, कैसे ये आईटी से डीए की तरफ तुम आए और गेट का आइडिया कैसे आया? इनिशियली तो सर मुझे गेट देना नहीं था. मेरा तो ओके, सॉर्टेड था कि प्लेसमेंट लेना है. ओके, Okay. बट थर्ड ईयर आते आते थोड़े प्लेसमेंट ठीक नहीं थे कॉलेज के. ओके. ऑल्सो थर्ड ईयर में मुझे AIML के बारे में पता चला, हम्म, तो मुझे काफी इंटरेस्ट था एमएल में. तो मैं Mhm. रिसोर्सेज से पढ़ता रहता था यूट्यूब वगैरह से. हम्म. तो 7th सेमेस्टर में सर मुझे एक मेरे सीनियर से बात हुई, तो वो भी उन्होंने भी ISC से एमटेक एआई किया है. ओके, तो ओके. उन्होंने मेरे थोड़े क्वेश्चंस पूछे एआई एमएल रिलेटेड. तो उन्होंने बोला Mhm. हाँ हाँ ठीक है. तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम्हें कहते हैं एमटेक एआई करनी चाहिए, हो सके तो ISC से करना, अच्छा कॉलेज है बहुत. तो जब Great. जाके मुझे लगा हाँ मे भी देना चाहिए. बट मेरा सीएस के सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं. मतलब काफी लेंथी पेपर होता है सीएस का, ऑपरेटिक्स बहुत Mhm. सब्जेक्ट्स रहते हैं. Yeah. So तो मैं people वही सोच nowadays रहा are था. getting scared of यस सर.
सिस्टम सब्जेक्ट्स। हाँ। यस सर, तो फिर मैं वही सोच रहा था सर, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम्म, बट सर अच्छी बात ये हुई कि उसी टाइम आईएससी ने अनाउंस किया कि एक न्यू गेट पेपर आ रहे हैं हम डीए में, गेट डीए या एस्पिरेंट्स के लिए। तो सर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं ठीक है, मुझे जाना भी था और या सही ओके, अपॉर्चुनिटी है ये। एग्जैक्टली। तो मैंने ओके, लास्ट ईयर गेट डी का फॉर्म फिल कर दिया था, ओके, लेकिन मैंने थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि एंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद दिसंबर के ओके। अराउंड स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, सेल्फ खुद करी थी। ओके, ओके। हम्म, तो लास्ट ईयर सर मेरी रैंक 488 आई। 488। नाइस। बट बट हाँ, दैट्स यू दैट इज ऑलरेडी, बहुत। मतलब ऑलरेडी फोड़ रहे थे तुम। अमेजिंग मैन, यस सर। अमेजिंग। बट सर उस रैंक पे आईएससी तो नहीं मिलता। हम्म, तो फिर घर वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, एक साल का ट्राई कर लो, एक साल हो जाए तो। इस बार या ठीक आ गई। तो फिर मैंने ठीक है, सोचा इसे नहीं, ये ठीक ठीक कहते नहीं। हैं? अरे ये बहुतों का ड्रीम यार। होता है। ये ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑल इंडिया रैंक 16 लाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड लाइक आपने जो एफर्ट्स, आप इतने हम्बल हो, जैसा सचिन सर ने बोला कि आप इट यू आर टेकिंग इट कैजुअली कि ठीक है यार, किया और हो गया। बट या वी नो द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट behind the scene. Yeah. Now you can go ahead. सो Yeah. ओके, सो ओके, सर। वी गॉट द आइडिया। कुछ और ऐड कर रहे थे क्या तुम अभी, हैरी? आई देयर फ्रोजन? हाँ तो सर मैंने एक ड्रॉ फेल यू हैव टू रिपीट करी। एक्चुअली, थोड़ा सा कुछ इशू Network आ रहा है issue इंटरनेट का। at your end, Harry. यू कैन रिकनेक्ट इफ इट्स पॉसिबल। ओके सर, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब Now आ it's रहा है, fine. Now या it's fine. कंटिन्यू, Yeah. कंटिन्यू। ओके सर। सर फिर मैंने एक साल ड्रॉप लेने का सोचा लास्ट ईयर Mm-hmm. के बाद। हेलो सर, आवाज हाँ, आ रही है? yes, हाँ, yes, हाँ, yes, yes, you are audible. कैरी ऑन, कैरी ऑन। Okay, so तुमने एक साल का ड्रॉप लिया and then you prepare full time for हाँ। this. Okay, that's nice. यस सर। एक्चुअली सर जब कहते हैं लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, तो मैं थोड़ा मई जून के टाइम को के कहते हैं वो आता है काउंसलिंग वगैरह, उसका इंतजार किया हाँ। कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाए, मिला नहीं, मई में खत्म हुआ उसके बाद। Mm-hmm. फिर मैंने सोचा मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर Uh, मुझे फिर बीच में मैंने एक और दूसरा पेपर दिया था अलग से सैबी का, तो बीच में उसकी प्रिपरेशन करी थी। mm-hmm. तो करेंटली 25 की प्रिपरेशन मैंने सितंबर से स्टार्ट करी थी गेट की। Okay. Oh man. Okay, that's so it's a good kind of an inspiration for guys like जो बोलते हैं कि यार मुझे एक साल लगता है प्रिपेयर करने में. Mm. That is a different thing that last year also he was able to get a rank of 488. So he was confident within himself that okay, he can still manage to get the rank. But still, सितंबर में शुरू करना, वो भी ये सोच करके कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, and then Yeah. coming up with this, it takes a lot of courage to do that. Great, Harry, with respect to that. So actually, how did you started? How did you start your preparation? I would like to just talk about that a little. Yeah. सर लास्ट ईयर जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो ज़्यादा इतना स्ट्रेटजी थी नहीं, कुछ मैं रैंडमली कुछ भी पढ़ता था। बट इस बार मैंने पूरा प्लान किया कि ठीक है, अप टू दिसंबर या मिड ऑफ जनवरी 15 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। Mm-hmm. Okay. लास्ट ईयर Okay. में सर मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो इस Okay. बार Okay. मैंने So you, सोच रखा you, था कि you फुल लेंथ मॉक टेस्ट लूंगा इस बार। so you were knowing actually where to work upon. That's why you started a little late as well. कि ठीक है, मैंने ये गलतियां की है. You had a check marks कि ये मैं इस टाइम नहीं करूंगा, and I know I would यस be सर। able to get a better rank than 488. Mm. Yeah, is it? यस सर। Okay. Okay. यस सर। Okay. ठीक है. I would like to know about सर your इनिशियल study फिर मैंने schedule. पढ़ना स्टार्ट किया सर। हाँ हाँ, हाँ, sorry, yeah, you continue. Continue. सर, ठीक है, फिर मेरा मतलब जनवरी तक कोर्स खत्म हो गया था जो मैंने प्लान किया था जिस हिसाब से। Okay. Okay. फिर उसके बाद मैंने, एक तो गेट डी में कोई पीवाई क्यूज तो है नहीं ज्यादा, हाँ। हाँ. तो दैट्स व्हाई मैं सर्च कर रहा था कोई एआईएमटीज मिल जाए। हम्म. Mm-hmm. फिर मुझे पता चला माइंड मैट्रिक्स के एआईएमटीज के बारे में। एक्चुअली हम्म. जब मुझे पता चला सर, एक तो ऑलरेडी हो गया था, Okay. दूसरा अगले दिन था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कैसे एआईएमटीज हैं। Mm-hmm. तो सर फिर मैंने अगले दिन दिया, मैं ऐसे कैजुअली ले रहा था, मैंने कहा देखते हैं कैसा होगा। हाँ। लेकिन फिर जब मैंने दिया सर, तो काफी बढ़िया था। Okay. मेरे याद तो नहीं है, बट 60 to 65 के बीच मार्क्स आए थे। Mm-hmm. हाँ, हाँ,
बट क्वेश्चन सर काफी अच्छे थे, काफी क्वेश्चंस पढ़ के ऐसे लगा कि ये तो बिल्कुल, ये क्या है, समझ में नहीं आया, ये तो देखा ही नहीं कभी पहले। ओके ओके फिर ओके उसको एनालाइज करने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, जो वीक कॉन्सेप्ट से उनको थोड़ा रिवाइज किया ज्यादा। ओके। Great. Okay. So, and after that, you appeared for all the AMTs, right? जितने भी हमने यस कंडक्ट सर, करे थे वो सब ऑल तुमने दी AMTs दिए, टोटल राइट? 7 थे सर, 6 बाकी सारी की। यस सर। ओके ओके। यस तो सर। ओवरऑल कैसा लगा उसका जो लेवल था हमारे एएमटीएस का? और कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगा हो जो सिमिलर टू गेट एग्जाम आया हो, कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी आपको जो लगा हो कि यार बहुत आउटस्टैंडिंग था, या कुछ बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछ रखे थे, या बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस थे जिससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे लेटर ऑन? तो कुछ ऐसा, कुछ इनसाइट्स हो जो हमारे एएमटीएस से आपको लगा हो, फील हुआ हो, तो यू कैन शेयर दैट। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे सर, इन डेप्थ क्वेश्चन थे काफी। ओके। मतलब सारे सब्जेक्ट काफी अच्छे थे, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे। हर एक एआईएमटीज का लेवल पे पिछले वाले से काफी अच्छा रहता था। वो बढ़ता जाता था। शुरू के 2-3 मॉडरेट लेवल के थे, फिर धीरे धीरे हार्ड होते गए थे। या हाँ यस सर। तो आई और आई सर कैन स्टिल प्रोबेबिलिटी रिकॉल। क्वेश्चंस काफी बढ़िया रहते थे। हाँ you can- ओके ओके। या सो मैं यस यहाँ सर, पर बस प्रोबेबिलिटी के यही क्वेश्चंस करने में थोड़ा दिक्कत होती थी सर। ओके। but I guess you learned there. You learned हम्म। there that okay, what are the good type of यस सर। questions and how do you solve them? You were there in the Telegram group as well, getting the idea that okay, how we can solve these good type of questions as well. और एंड मैं थोड़ा सा बस वही इंसिडेंस यस बताना सर, चाहूंगा कि टेलीग्राम पे भी था सर मैं। वही, तो मैं सर के साथ हमारी बातचीत होती थी ड्यूरिंग दी दीज मॉक टेस्ट कि यार पिछले वाला ऐसा मॉक टेस्ट रहा है तो व्हाट वी शुड डू दिस टाइम। सो हर बार ऐसा लगता था कि यार बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और अच्छा देते हैं। सो वी विद एवरी मॉक वी केप्ट ऑन पुशिंग until I guess the last mock या। that we kept a little low just to make sure students should not feel demotivated कि एकदम ये अब तो गेट एग्जाम पास में आ गया, we are still not getting the marks. So that was the thing. Okay. Yeah. A great, Harry. Now over here, I would like to just ask with respect to your routine, or how did you basically spend your time preparing for the gate? You told about the mock test to us. You told I got the idea, but overall, what was your schedule throughout your preparation journey? Like, कैसे तुम time devote करते थे? सर ओवरऑल मैं करीब दिन में 6 to 8 आवर्स पढ़ लेता था सर। ओके। तो यही मतलब थ्रू आउट ईयर आपने कंसिस्टेंटली इतना रखा, या फिर मे बी लेटर फेज में प्रिपरेशन के थोड़ा इसको बढ़ाया? तो कैसा रहा मतलब ओवरऑल यस। आपका? हाँ सर, वो मैंने बताया कि सितंबर से मैंने स्टार्ट करी थी सर इस साल। हाँ हाँ वैसे हाँ ही, तो हाँ। जब से सर वही रखा कोर्स का, क्योंकि मैंने सोच रखा था दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में कोर्स खत्म करना है। हाँ 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 और उसका जो, हाँ, लीनियर अलजेब्रा थोड़ा लेंदी कोर्स है इसमें, डीए में काफी हम्म। सिलेबस उसका। हाँ हाँ हाँ। ओके। इसलिए सर, इसलिए 6 to 8 आवर्स सर स्टडी करता था रोज। रोज फिर रोज टाइम टू एंड हो दैट गया, मतलब सर टाइम तक हो फुल गया था टाइम भी कोर्स। था? यस सर। ओके ओके यस ओके सर। ओके। ओके, दैट्स नाइस। तो कुछ हैरी उस पर अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा और हम जानना चाहेंगे, आपकी प्रिपरेशन के बारे में, कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर जस्ट, क्योंकि आपने प्रिपरेशन भी थोड़ा लेट स्टार्ट करी थी ना इस साल, तो शॉर्ट नोट्स बनाते थे या फिर जो भी आपने लॉन्ग नोट्स बनाए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन उसी को रेफर किया इनमें? और रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन फेज? सर नोट्स तो मैंने बनाए थे सर, हम्म। एक ही बार बनाए थे। शॉर्ट नोट की फिर जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा। ओके। हाँ, बट एक प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा के लिए जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हैं थोड़े। सर फिर मेरा कोर्स अब खत्म हुआ सर जनवरी में, उसके बाद मैंने शेड्यूल बना लिया था कि मंडे को मैं पढ़ूंगा लीनियर अलजेब्रा, ट्यूसडे को पढ़ूंगा प्रोबेबिलिटी। हम्म। तो इस हिसाब से सर मैं हर वीक वही फॉलो करता था। फिर ओके जब एआईएमटीज हुआ करते थे तो उसको देता हम्म। था, फिर एनालाइज करता था, फिर उस हिसाब से अगले हफ्ते का शेड्यूल कर लेता था कि कौन सा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, उस सब्जेक्ट किस वीक पे पढ़ रहा है फोकस तो उस करना है पे। ज्यादा। ग्रेट ग्रेट। नाइस। So this is यस a सर। very important point for every student. We should not be very strict with respect to this thing कि यार नहीं, this is the schedule and I'll follow this. What I mean by this is you have to be flexible enough to know
that with time you get to know where do I need to put more efforts and where I can reduce the efforts. तो जैसे कि हैरी ने बताया कि भाई जब मुझे वीक का पता चल गया तो आई वुड डिवोट मोर टाइम देयर एंड वुड रिड्यूस द टाइम ऑन सम गुड टॉपिक्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी फेल्ट कंफर्टेबल, या फिर मुझे लग रहा है कि यार इधर में से गड़बड़ी नहीं हो रही है, मिस्टेक्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है फॉर एवरीवन हूसोएवर एक्चुअली प्रिपेयर्स फॉर द एग्जाम, कि आप अपना एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाओ विच शुड बी एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग यू आर डेवलपिंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। या कंटिन्यू हैरी। सॉरी। यस सर। हाँ तो सर मुझे यही लगता है जितना इम्पोर्टेंट अपना सिलेबस फिनिश करना होता है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिवाइज करना कंसिस्टेंटली एग्जैक्टली। और एनालाइज करना कि क्या वीक पॉइंट्स है अपने। और मॉक टेस्ट देना भी सर काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर अपन मॉक टेस्ट नहीं दिए डायरेक्ट गेट में जाएंगे तो प्रेशर हैंडल करना वो सब स्ट्रेटजी फिर काफी। लास्ट ईयर सर मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था इसलिए गेट में थोड़ा प्रेशर सा हो गया था सर उसमें मुझ पे, तो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी थी सर मैंने। होता So I है guess like we could help a lot मैंने there. ज्यादा Yeah. फोकस। यस सर, इसलिए सर इस बार मैंने सोचा था कि मॉक टेस्ट तो दूंगा मैं सर और Nice. सिली मिस्टेक रिड्यूस करूंगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स की वजह से काफी मार्क्स चले जाते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है अराउंड 10 to 15 मार्क्स सर सिली मिस्टेक्स की वजह से गए थे। Negative. बहुत सिली से क्वेश्चंस थे सर। यस सर, और लास्ट टाइम सर काफी पेपर सिंपल भी आया था इस साल हाँ। कंपैरिजन में। बिल्कुल। Okay. यस सर। इस बार आपका कितना नेगेटिव रहा जब भी सर मैं ओवरऑल? सर इस बार मेरा नेगेटिव था -0.67। ओके, Amazing man, amazing. आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई गलत हाँ। किया होगा, राइट? या फिर दो Yes, sir, 2 क्वेश्चन marks का 1 मार्क गलत करके। किया ओके ओके, नहीं सर 2 मार्क्स का एक गलत था शायद। बस। ओके, ग्रेट दैट्स मैन, ग्रेट। ग्रेट। एंड व्हाट वाज द टोटल ऐसा वो भी सर मार्क्स यू सिली गॉट? मिस्टेक थी सर इस बार। ओके। वो What were मुझे the बाद marks में you got? रिग्रेट हुआ। मार्क्स कितना यस था? सर, सर मार्क्स 78.33। अमेजिंग, 78। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। सी ओके, ये एक चीज इसी से रिलेटेड मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टाइम ठीक है आपने मॉक टेस्ट कम दिए थे या नहीं दिए थे तो नेगेटिव ज्यादा होता था। इस बार आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया अपने सिली मिस्टेक्स को और नेगेटिव मार्क्स को भी। तो कैसे फिगर आउट किया कि सिली मिस्टेक्स हो रही है और कैसे उसको इम्प्रूव किया कि यार अगर मैं सिली मिस्टेक्स इतना कर रहा हूँ तो कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेक श्योर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं वो कमिट ना करूँ। तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी रही, कोई प्लान रहा? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिली मिस्टेक्स करते हैं एंड दे थिंक कि हर नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा बट स्टिल दे मेक इट। तो उसके लिए क्या किया आपने? सर लास्ट ईयर के पेपर देख के मैंने सोच रहा था कि इस बार सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी, हम्म इसलिए मैंने मॉक टेस्ट जब भी देता था सर मैं पूरा एनालाइज करता था। कम से कम मॉक टेस्ट देने के बाद 1-2 घंटे उन्हें प्रॉपर एनालाइज करता था और सिली मिस्टेक्स देखता था कि आज मैंने क्या सिली मिस्टेक करी और क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स करी। तो तो मैं हाँ, लिखते थे क्या? हाँ नहीं सर लिखता नहीं था, मैं रोज सोने से पहले रिवाइज करता था अपने माइंड में ओके कि क्या। ओके ओके, डिफरेंट क्या सिली काइंड ऑफ। मिस्टेक्स करी। हाँ ओके ओके, सो दिमाग में लिखते थे कि हाँ आज मैंने ये सिली मिस्टेक्स किए, यस दे सर। शुड नॉट रिपीट। ये सर गुड रोज गुड। रात में सर सोने से पहले मैं रिवाइज करता था और जब भी अगला मॉक टेस्ट देता था तो स्टार्ट होने से पहले रिवाइज कहते हैं याद करता था कि पिछले मॉक टेस्ट में क्या मिस्टेक्स करी थी। तो इस बार तो वो नहीं करनी, भले नहीं हो जाए लेकिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो अमेजिंग। ऐसे सर ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगी सर सिली मिस्टेक्स। ओके 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 ओके, ठीक है। ग्रेट। ओके, तो या हैरी, सो लास्ट व्हेन जब बिल्कुल 2 हफ्ते बचे होते हैं एग्जाम से पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार कैसा परफॉर्मेंस होगा। इवन दे हैव प्रिपेयर्ड वेल बट स्टिल कभी कभी उनको थोड़ा डाउट रहता है, सेल्फ डाउट आता है और वो सबके साथ वो नेचुरल होता है। बट एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है वो उस फीलिंग्स को, उन जो स्ट्रेस जो उसका आ रहा है उसको कितना वो रिड्यूस कर सकता है एंड जस्ट गेट इनटू दैट जोन की जहाँ पे आप पॉजिटिव फील करो और बहुत मोटिवेटेड फील करो कि मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं गेट एग्जाम में भी अच्छा करूंगा और फोड़ के आऊंगा। तो वो चीज लास्ट 2 वीक्स तो था, वो कैसा था उस समय, माइंडसेट क्या था और क्या आप प्रिपेयर करते थे या सिर्फ ओनली रिवीजन करते थे या फिर टेस्ट और लगाए लास्ट 2 वीक्स में? तो उसके बारे में बताना। तो सर मैंने इनिशियली जब मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए थे तो ग्रेजुअली मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए, बट लास्ट लास्ट में मेरे शायद मैंने प्रेशर ज्यादा हो गया था तो मार्क्स कम आने लगे थे। तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि अब क्या होगा, पेपर तो बहुत करीब है। हाँ हाँ
लेकिन उसी टाइम पे सर मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन था। ओके। तो मैंने 3-4 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। नाइस। मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, मैंने कहा ठीक रिलैक्स है कोई किया। बात नहीं, 3-4 दिन का पॉज लेते हैं उसके बाद देखते हैं। हम्म। तो आफ्टर 3-4 डेज सर मैंने फिर रिवाइज किया। फिर शायद फिर लास्ट एक मॉक टेस्ट बचा था वो दिया, उसमें ठीक मार्क्स आए मेरे। हम्म। और लास्ट हफ्ते भी सर मैं फिर मॉक टेस्ट तो ज्यादा देर नहीं था, रिवाइज करता था सर बस मैं। सो मेरी तो सर यही एस्पिरेंट्स को सलाह रहेगी कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री रहना है, चिल करना है। जो भी पढ़ा ओके। था ठीक है, वो सब ब्रेन में तो ऑटोमेटिकली है, जितनी मेहनत करी बिल्कुल। थी। पैनिक करने से तो तो फिर वही खराब वही ही जो होता जो है। आता है वो भी हम गलत कर देते हैं, इवन सिंपल यस क्वेश्चंस सर। भी होते हैं उसमें मिस्टेक करके आते हैं। तो ये बहुत जरूरी, और हमें लगता भी लास्ट टाइम में, लास्ट फेज में ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो ऐसा ऐसा लगता है दिमाग सर का। सब कुछ भूल गया। हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो बट एक्चुअल में हम भूलते नहीं है, बट यस वो सर। हम माइंड माइंड हमें ऐसा बोलता है कि यार मैं वो चीज़ भूल रहा हूँ, फिर हम उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, फिर कहते हैं हाँ ठीक है याद आ गया। बट एक्चुअल में हम नहीं भूलते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो अपने आप चीज़ें रिकलेक्ट होती हैं और वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। यस सर। तो या ये माइंड तो सेट। मैं भी कुछ ऐड यस कर यस रहा था, यस पॉइंट टू बी यस नोटेड यस। फॉर एवरीवन। हैरी ने बहुत अच्छी एक चीज बोली, लेकिन इस चीज को गलत नहीं लेके जाना है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू इंटरप्रेट थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स कि चिल करना है लास्ट टाइम में, बट ये टाइम फ्रेम यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, कि वो लास्ट मंथ की बात नहीं कर रहा है, वो लास्ट वीक की बात कर रहा है, ठीक है? तो चिल करने की बात। सो एवरीवन हुसएवर इज लिसनिंग, रिमेंबर कि बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट के वीक में ही इज टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, चिल करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप चिल मोड में थोड़ा पहले चले जाओ। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि ऐसा ना हो कि यार तुम मतलब और भी ज्यादा गलतियां हो रही है और तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे हो चिल के चक्कर में। इट शुड बी कि जब सब हो गया है एंड देन यू व्हेन यू आर इनटू दिस ओवर थिंकिंग मोड, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मेडिटेशन करना है, टॉक टू योर फ्रेंड्स इफ देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग नियर बाय, अटेंड दैट इवेंट, बट दैट शुड नॉट बी कंज्यूमिंग टू मच ऑफ योर टाइम, अदरवाइज इट वुड disturb you a little, and it may deviate from your like exam, what should I say, माइंडसेट। mindset. या। Yeah. ओके, दैट्स रियली नाइस। तो जिस दिन एग्जाम था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, बट वो 3 घंटे जो होते हैं ना, उसमें क्या माइंड सेट रहना चाहिए, है ना, कितना आप बिल्कुल रिलैक्स होके काम माइंड से आप बैठे हो एग्जाम देने, वहाँ पे गेट सेंटर में गए हो जब, तो वो 3 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 घंटे में क्या आपका माइंड सेट था और क्या फोकस था? कुछ सोच भी रहे थे या बिल्कुल थे कि बस जो होगा देखा जाएगा? या फिर एक एक माइंड सेट होता है कि यार वन क्वेश्चन एट अ टाइम? बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ। तो आपका क्या था माइंडसेट उन 3 घंटों के लिए जब आप गेट एग्जाम देने गए थे जिस दिन? सर जैसे मैंने बोला, मैंने लास्ट टाइम से डेट दिया था, उसमें मैं पैनिक कर गया था बहुत ज्यादा। हुआ क्या था सर, एक्चुअली एक 1 मार्क्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ओके। कुछ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। फॉर्मूला वो Hmm. Harry, I think your net internet is not working properly. Are we audible to you? यस सर। सर एम आई ऑडिबल? Yes, हाँ, yes. Now it's better. Yeah. तो तो मैं poison पॉइजन distribution वाली पे। बात फिर से बताना पड़ेगा। जहर वाली बात। हाँ। यस। यस सर। सो सर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था एक्चुअली, तो मैं बड़ा पैनिक करके, मैं कहा 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आना तो आगे क्या होगा, हम्म। और टफ होंगे क्वेश्चन। तो उसमें मैंने 2-3 मिनट वेस्ट कर दिए थे सर। तो उसकी वजह से ओके। सर मेरा दिमाग जब भी खराब हो गया था, तो ऑल ओवर पूरा पेपर खराब गया उसकी वजह से। तो हम्म। इस बार सर मैंने पहले सोच लिया था कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन पे। हम्म। मैंने सेट कर लिया 20 से 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ूंगा, आया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा, कोई बात नहीं, बाकी और क्वेश्चन है, 64 हाँ। रिमेनिंग है। तो इस बार सर मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था, मैंने सोच लिया था ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब तो क्या ही है, पढ़ लिया, जितनी ग्रेट। प्रिपरेशन करनी थी। ट्रू। और यही यही माइंडसेट होना चाहिए कि जब आपने अच्छे से अपना बेस्ट दिया है ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज, और जब आपको पता है कि आपने अच्छे सब कुछ कवर अप किया है, उसके बाद एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड्स। वहां पे आप बस जो पढ़ा है उसको जाके बस अप्लाई कर सकते हो। दैट इज दैट इज व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। यस सर। उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे कैसा होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, राइट?
तो यही माइंडसेट होना चाहिए, यही माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, जैसा आपने बताया। तो चिपकना नहीं है। दैट्स, हाँ, वो दिल नहीं यस लगाना है क्वेश्चन के साथ, तो वो चीज़ जरूरी है। तो दैट्स रियली नाइस फीड एडवाइस टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स आल्सो। एग्जैक्ट। यस। यस सर। तो इस हैरी, बार भी हाँ हाँ, यस बोलो बोलो, कुछ सर। कह, हाँ। हाँ, बताओ बताओ। नो नो, शेयर सर सम इस स्टोरी, बार भी या एक्चुअली हुआ हाँ। था जब मैंने पहले एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखा सर, वो मुझसे नहीं बना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही है। मैंने दूसरा देखा, मुझसे वो भी नहीं बना। तो ऐसे में पूरे मे बी 10 आते हैं सर, 9 बने नहीं मुझसे, एक ही बना था सिर्फ। ओके। लेकिन अरे मैंने वाह। फिर वो पूरा छोड़ दिया एप्टीट्यूड सेक्शन। मैंने कहा हाँ कोई हाँ बात नहीं, बाद में देखेंगे, इस बार टाइम वेस्ट नहीं करना। पिछले बार मुझे मेरे दिमाग में बस एक ही था, पिछले बार मिस्टेक नहीं करनी। हाँ। तो मैं डायरेक्ट टेक्निकल सेक्शन में चला गया, फिर मैंने कहा बाद में आके देखते हैं। फिर लास्ट में मेरे पास करीब 40 मिनट बचे थे, तो फिर मैंने जब टेक्निकल देखा, फिर एप्टीट्यूड के सर करे। एप्टीट्यूड देखा, फिर सर बन गए थे। हाँ, यही ये होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, इनिशियल फेज में अगर हमारे पास हमारे 6-7 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चन मान लो नहीं बने, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल यार कि अब तो क्या होगा, अब तो पेपर ही खराब हो गया। क्योंकि यस ऐसा सर। बहुत बार होता है। हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने गेट दिया था, तो जब हम वापस उन क्वेश्चंस पे आते हैं, देन वी फेल्ट कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं बन रहे थे। तो वो बेटर यस होता है कि सर। आप उस इनिशियल फेज में आप टाइम वेस्ट ना करके उन पे बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर वापस आके आप सॉल्व करो। तो हम्म। दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, कि ये सर चीज से वो सीखें। इस बार सर मुझसे एक थोड़ी और गलती हुई सर। मेरा पेपर हो गया था सर, पूरा 10 मिनट्स बचे थे। ओके। तो मैं सोच रहा था एक बार पूरा क्वेश्चंस को देख लेता हूँ जल्दी से, रिविजिट कर पूरी लेते हैं, हाँ। रिविजिट कर लेता हूँ। हाँ हाँ। बट मैं सोच रहा था सर, अगर बीच में कुछ मे बी कुछ गलती हो गई, सही आंसर किया हो, मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया तो। तो पैनिक। दिक्कत हो जाएगी। तो सर मैं उस पूरे 10 मिनट सर ऐसे वेस्ट जान दिए सर, मैंने उसमें कुछ किया नहीं। बट अब मुझे ओके। रिग्रेट होता है बाद में, जब रिस्पॉन्स सीट आई सर, हाँ हाँ। उसमें सर लीनियर अलजेब्रा के 2 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे सर, अगर मैं देख लेता तो शायद बन जाते सर मुझसे। अरे। बट कोई नहीं। जो वन रैंक, डिजिट रैंक हो जाता। हाँ, तब 1 डिजिट रैंक हो यस जाता। सर। बट ठीक है, कुछ कुछ चीजें लिखी होती है वो हो इट जाती वुड ऑलवेज बी यार, मतलब है, तुम्हें या ना हमेशा ही लगेगा कि यार मैंने इससे बेटर कर सकता था। सभी के हाँ। साथ यस है। सर, वो तो होता है। सबके साथ, सबको लगेगा यार ये शिट मैन, ये मैंने क्या कर दिया। वही बट वही। सर जो मिला वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज। बहुत बड़ी यस बात है, सर। अब बिल्कुल। ठीक है। हम्म। ओके, दैट्स रियली नाइस हैरी। तो या कुछ अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ एडवाइस हो, तो थ्रू बाय थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गेट डी एग्जाम, तो वो क्या बताओगे? सर मेरी एडवाइस तो सर यही रहेगी कि इनिशियली पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। हम्म मतलब एक अपना शेड्यूल बना लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपके लिए बेस्ट हो। एक प्रॉपर टाइम रख लीजिए कि अप टू दिसंबर मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हम्म। तो फिर आप उस हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए कि अप टू दिसंबर होना ही चाहिए, हम्म। टारगेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन डिले कर दी, प्रोक्रेस्टिनेशन वैसे ही कि कल कर लेंगे, हम्म। थोड़ा बच गया, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम लिमिट में होनी चाहिए सर सारी चीजें। मैंने भी सर सोचा था दिसंबर तक कर लूंगा, बस थोड़ा 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया था, 10 जनवरी को खत्म हो गया था। हम्म। बट एक सबसे पहले है फर्स्ट के सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सर मॉक टेस्ट देने चाहिए सर। खासतौर में कहूँ AIMTs देने चाहिए सर, काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उनके। हम्म। तो एक्सपीरियंस मिलता है गेट जैसा। वो प्रेशर हैंडल करना रहता है उन 3 घंटों में, सिटिंग की आदत होती है। बिल्कुल। और फिर नए क्वेश्चंस देखने का मिलता है सर, कि नए क्वेश्चन आ गया तो क्या करें सर, हम्म। वही। वो भी पता चलता है सर। फिर एक्यूरेसी पता चलती है, और सिली मिस्टेक्स की काफी चीज रहती है सर। हम्म। तो मेरी एडवाइस है सर, अप टू दिसंबर कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर देन एक मंथ रिवीजन और मॉक टेस्ट को दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जितना important, इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म करना है, उतना इंपॉर्टेंट है रिवाइज और मॉक टेस्ट देखना। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दैट्स इंपॉर्टेंट है। रियली नाइस। और लास्ट के कुछ 1-2 दिन थोड़ा रिलैक्स करें, ज्यादा लोड रिलैक्स ना करें, लें। जितनी मेहनत बस। करनी है कर चुके हैं, अब इट्स टाइम टू हाँ। यस स्टे सर। काम एंड रिलैक्स, या। बस। वेरी गुड एडवाइस फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। और बहुत अच्छा लगा हमें हैरी से बात करके और उनके प्रिपरेशन के बारे में जान के। एंड ही इज अ रियली नाइस गाय, राइट, हम्बल वेरी। So that's really good. Be like this also. सर And we really wish you all the very best for your future endeavors. Yes, Sachin sir, want to say something? अब मैं तो कुछ नहीं, मैं बस वही मतलब फीलिंग गुड अबाउट हैरी, लुकिंग Yeah. एट हिम लाइक द वे ही इज स्माइलिंग राइट नाउ।
it really is like a sense of pride वो दिख रही है when you achieve something, and then the way he is actually talking about this thing ना कि आगे वाले बच्चों को क्या नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, the way he is guiding, amazing, like good insights, Harry. And this comes from the experience through the journey you have been through, and this is not really comes naturally to anyone. It comes up when you actually have been through that actually. And yeah, like good session overall. Thank you, Harry, for this. And I hope Thank you, sir. we at Mind Matrix Learning could help you in, like contributing to your success Yeah, there also. Uh, so yeah, it was a nice session with you. yeah, Anything Anshu sir would like to conclude or would like to talk about? Yeah, yeah. I'm just So, listening. yeah, I would like to say all the very best to you, Harry, and hopefully this session would be helpful for all the future aspirants and for all our viewers. And definitely they will also gain insights from this session, and they will use those advices during their preparation also. So thank you, Harry, for joining us for Thank you, this sir. session and for taking out your time. So, and all the very best for your future. Thank you. All the Thank you, best, sir. Harry. All the best. Okay. Thank you, sir.